Assalamualaikum. We are live from TheListener.pk's account. I hope you all are doing well. हमारा जो आज का लाइव सेशन is going to be about motherhood and the impact it has on a women's mental health. क्योंकि अभी लास्ट संडे को मदर्स डे था, तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्ट्रगल्स, मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स ऑफ अ मदर. तो हमारे पास आज जो हमारे स्पीकर हैं, गेस्ट स्पीकर है, नेम इज़ Sabaenah Salim, and as soon as Sabaenah joins us, we are going to start with this live session. So if you have any questions related to the specific topic, motherhood से related या उनकी mental health से related किसी भी type के कोई भी questions हो आपके पास, please leave them in the comment box below. And since Sabaenah is here, we are going to get her in. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Walaikum assalam. How are you? I'm good. I'm good. Thank you. How are you? I'm good as well. Thank you for joining us, Sabaenah. I hope I'm pronouncing the name right. Sabaenah, right? Yeah, I don't know how you're doing it, but yeah, it's Sabaenah. All right. Glad to know. All right, Sabaenah, so can you please introduce yourself? Sure. So my name is Sabaenah Salim, as Maryam. You're Maryam, right? So as Maryam rightly pronounced, it's very rare, so I was very shocked and surprised. I'm a clinical psychologist by profession, and I'm also an organizational wellness psychologist working at one of the private tech companies. So and there's a duality in the role there. I have my own clinic in Lahore. I've been working since the past 5 years after completing my master's in clinical psychology from NUST, Islamabad. So yeah, I've worked in various settings, in various populations, but we can get into the details later. All right. So thank you so much for joining us, Sabaenah. So हमारा आज का जो live session है, since a lot of people might not be familiar with it, it's about motherhood and the impact it has on a woman's mental health. तो क्योंकि अभी लास्ट संडे इट वाज मदर्स डे, तो हमने देखा कि मदरहुड और मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स जो एक औरत की होती हैं या एक मदर की होती हैं स्पेसिफिकली, उसको ज़्यादा एड्रेस नहीं किया जाता. So we wanted to do this session specifically इस टॉपिक के ऊपर because we wanted people to be aware of कि एक मदरहुड के साथ जब एक औरत एक इस स्पेसिफिक सीन के अंदर एंटर होती है, तो उसकी मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स को भी उतनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए जितनी और चीज़ों को दी जाती है. So starting from हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से ऊपर के why do you think so many women becoming mothers for the very first time, why do they have so many mental health issues? Maryam, I think it's a long topic there, and to me the first and foremost and the very basic root of the issue is that when a woman becomes a mother, that is something that is considered heroic, and जो ग्लोरी अटैच्ड है ना मदरहुड के साथ हमारे कल्चर में, उसकी वजह से वो थोड़ा डीह्यूमनाइज हो जाता है. Because we have to understand कि ये एक औरत है जो कि अपनी जिंदगी गुजार रही थी. उसकी अगर पहला बच्चा हो तो आपने कॉमनली यही अक्सर देखा होता है कि वो विद इन वेरी फ्यू मंथ्स और ईयर्स आफ्टर द मैरिज, जो कि इन इटसेल्फ एक बड़ी मेजर लाइफ चेंज है, वहाँ उसके बिल्कुल फौरन बाद एक चीज आ जाती है, राइट? और उस प्रोसेस में, उस ट्रांसफॉर्मेशन में कितने सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन वो एड्रेस तो दूर की बात है, वो इतना ज्यादा ग्लोरिफाइड होता है कि उसको बस हम ना एक तरह से ब्लैंकेट कर देते हैं. वी डोंट नो हाउ द वुमन इज डूइंग इट. We expect her to do it, and for a lot of women it's not even an active choice that they're making, because again कुछ cultural connotations हैं. ये सारी बातें करने का मकसद ये कतई नहीं है कि जो हमारे कल्चर में हो रहा है हम उसको हम अप्रिशिएट नहीं करते या हमारे कल्चर में स्ट्रेंथ्स नहीं है. बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ता जाएगा इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती जाएंगी. मदरहुड भी उतनी ही कॉम्प्लेक्स होती जाएगी. इट्स नॉट समथिंग दैट्स इट्स नॉट स्टैटिक, इट्स वेरी डायनामिक. और जैसे जैसे वो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, ये औरत जो माँ बनने जा रही है उसके अपने कैरेक्टर की कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ी है. जो बच्चा आ रहा है दुनिया में उसकी रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ी. सो इस सारे को अगर हम देखें तो ऑफकोर्स फिर जो स्ट्रगल्स हैं वो बहुत से लेवल्स पे आएंगी. टू मी इट्स नॉट जस्ट the struggle of a mother, it's the struggle of a human being जो कि social level पर है,
जो कि फिजिकल लेवल पर है, बायोलॉजिकल लेवल पर है, बायोलॉजिकल में ऑफ कोर्स केमिकल लेवल पर है, मेंटल लेवल पर है. सो इट्स अ होल different life. It's a whole different transformation. So yeah, I would say Exactly. these are the main things worthy of mentioning. ठीक हो गया. अच्छा, there's this term which we hear a lot these days because अब awareness आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है मेंटल हेल्थ इश्यूज को लेके, स्ट्रगल्स को लेके, प्रॉब्लम्स को लेकर. तो एक बहुत कॉमन टर्म जो मदरहुड के साथ हम आजकल सुनते हैं, न्यू मदर्स में स्पेसिफिकली, इट्स पोस्टपार्टम डिप्रेशन. हाउ वुड यू डिफाइन दैट? I again, I'm very happy to see कि postpartum depression का at least name familiar हो गया है लोगों के लिए, because this is something that most females are likely to experience in different intensities. So baby blues या जो बिल्कुल एक period है birth से लेकर 6 weeks तक का, वो तो आपने in any case experience उसमें बहुत rapid changes experience करनी ही है. Thankfully, the modern psychological sciences and biological sciences, they appreciate the fact कि ये जो changes हैं ये सिर्फ birth के time या delivery के time नहीं होती हैं. ये जब आपका pregnancy चल रही है उसी time के अंदर female की body में ऐसी changes आ रही होती हैं जिसकी वजह से वो depression का onset हो सकता है. Now it could be postpartum depression. Postpartum हम उसको कहते हैं कि जब हम delivery के time के 2 हफ्ते बाद अगर किसी को इस तरीके की कुछ एक्सपीरियंस होते हैं बेबी ब्लूज, बट इन अ वेरी मेजर कैपेसिटी, एक इंटेंसिटी बड़ी हो, मैं उसके सिम्टम्स की तरफ आती हूँ, तो तब हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं. बट जो DSM-5 है, तो TRB आ गया, बट DSM-5 के अकॉर्डिंग विच वाज पब्लिश्ड इन 2013, वो पेरी पार्टम डिप्रेशन के बारे में भी बात करता है कि डिप्रेशन का ऑनसेट किस टाइम पे हुआ. सो इफ इट इज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, डिलीवरी अभी नहीं हुई, वहां पर स्टार्ट हो रहा है, तो फिर वो पेरीपार्टम ऑनसेट कहलाता है. बट बोथ ऑफ दीज आर रियली लिंक्ड बिकॉज इनके सिम्टम्स एक जैसे होते हैं, सिमिलर हो सकते हैं. सिर्फ फर्क ये है कि अभी द चाइल्ड इज इनसाइड द बॉडी और एक में है कि द चाइल्ड इज नॉट इनसाइड द बॉडी. तो ऐसा थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये होता क्या है. सो व्हेन a woman bears a child, अब उसकी बॉडी में बहुत सारी चेंजेस आ रही होती हैं और उसकी बॉडी के ऊपर बहुत सी डिमांड्स नई ऐड हो जाती हैं. और इसी ट्रांजिशन के दौरान फिर ये डिप्रेसिव सिम्टम्स, या ये एक स्पेक्ट्रम है जिसको थोड़ा सा समझना जरूरी है. देयर आर बेबी ब्लूज व्हिच मोस्ट वुमेन आर लाइकली टू एक्सपीरियंस. there is a stronger sense to it when ये postpartum depression या postpartum anxiety की तरफ, या peripartum onset anxiety या depression की तरफ चल जाए. And then there's an extreme जहाँ पर psychosis भी ऐड हो जाता है, जिसके अंदर आपको कुछ females में, which is extremely rare by the way, 1 in 1,000 women usually they might experience it. It's rare but it is also something that can happen. तो उसके अंदर फिर उसके जो symptoms हैं वो थोड़े से severe हो जाते हैं. अब पोस्टपार्टम डिप्रेशन की अगर बात करें तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन के अंदर देयर इज अ लॉट ऑफ सैडनेस, क्राइंग, इरिटेबिलिटी हो सकती है, और एक थोड़ा सा एनहेडोनिया की फील भी हो सकती है, लैक ऑफ आपकी अपनी जो बायोलॉजिकली अ पर्सन फील्स लो. बेबी ब्लूज की ये चीजें, लेकिन आप इंटेंसिटी अगर हायर कर लें तो एक्सेसिव sadness. For a few females, it can include nightmares. It can have an effect on their personal marital life. It can have an impact on their own life in a way कि कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा है, appetite का लॉस हो जाता है. इस पीरियड में आपकी बॉडी इमेज के काफी सारे इश्यूज होते हैं, तो उसके रिलेटेड थॉट्स हो सकती हैं. कहने का मकसद ये है कि इट्स अ वेरी अनसेटलिंग सॉर्ट ऑफ टाइम. एक स्ट्रेस है लेकिन वो एडिशनल रेगुलर से ज्यादा. And if we talk about puerperal psychosis या postpartum psychosis, तो उसके अंदर excessive mood swings हो सकते हैं, और hallucinations, वो rarer form है लेकिन hallucinations भी हो सकती हैं. और इसके अलावा there can be some other symptoms जिनके अंदर suicidality is one of them, के
feeling like ending your life, या thoughts of ending life, and then there could also be a lack of interest in the child rearing activities, कि जब बच्चे ने माँ की तवज्जो चाहिए होती है बच्चे को, लेकिन माँ उस कंडीशन में नहीं रहती कि जहाँ पे वो उसको वो दे सके. तो ये सब एक रेंज ऑफ सिम्टम्स है, जरूरी नहीं कि सब एक्सपीरियंस करें, बट कैन बी देयर. सही हो गया. तो टॉकिंग अबाउट पोस्टमार्टम डिप्रेशन, इसके अलावा कौन से मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं या हमें एड्रेस करने चाहिए, जो कि विमेन जो नई नई मदरहुड के अंदर आती हैं उनको पता होना चाहिए कि उनके साथ ये भी हो सकता है और ये नॉर्मल है? अच्छा, आई वुड नॉट से कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन नॉर्मल है, बट आई वुड से कि आपका क्वेश्चन जो बेसिकली एंटिसिपेशन के बारे में मुझे लगा, देखें, दीज आर साइंस दैट यू हैव टू लुक फॉर, कि अगर ऐसा होता है तो डोंट एक्सेप्ट इट एज अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस, सीक सपोर्ट वेयर यू नीड एंड सीक हेल्प. आई मस्ट मेंशन हियर कि सी, ये वाली जो फैसिलिटीज हैं मॉडर्न या डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं उनके अंदर इन चीज़ों को एक्सेप्ट किया जा चुका है कि ऐसा होता है. So the person is expected to seek support from the government institutions और जो भी उनके mental health के systems हैं. हमारे यहाँ पे वी आर फार फ्रॉम इट. तो आप अगर हमारे यहाँ पे लोकली आई एम श्योर आपने भी, हम सब जो ऑडियंस में हमने सबने देखा है ये चीज कि हमारे यहाँ पे रिलायंस होती है जरा फोकलोर पे, हैंडमेड टेल्स पे, जो टोटके होते हैं उनके ऊपर. तो मॉडर्न साइंस के साथ चलने का फायदा ये होता है कि जो एक कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है ना दुनिया में, वो उसको थोड़ा सा एड्रेस कर रही होती है. तो यहाँ पर अगेन लैक ऑफ सिस्टम की वजह से हम एंटिसिपेशन पे भी, हमारे अगर कोई समझ भी जाए कि दिस इज अ प्रॉब्लम दैट आई एम फेसिंग, वो किसके पास जाएगा? तो ये इंफॉर्मेशन भी होना थोड़ी जरूरी है. द साइंस टू लुक आउट फॉर आर मूड चेंजेस, जहाँ पे आपको फील हो कि यू नो देयर समथिंग दैट्स नॉट राइट, देयर आर थिंग्स दैट आई एम फीलिंग दैट आई वुड नॉट फील. बच्चे की तरफ रुझान ना होना. इसके अलावा अकेलापन महसूस करना इज वे मोर कॉमन देन वी वुड लाइक टू टॉक अबाउट, राइट? एंड इसके अलावा कुछ बॉडीली चेंजेस हो सकते हैं. देयर कैन बी अ फ्यू हेल्थ रिलेटेड सिम्टम्स जो कि बिल्कुल डायरेक्ट, जैसे कि कुछ लोगों को हेडेक्स या और कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं. तो ऑल ऑफ दीज साइंस वन हैज टू लुक फॉर देम. ठीक हो गया. तो सुबाइना, हमने मेंटल हेल्थ इश्यूज की बात कर ली, पोस्टमार्टम डिप्रेशन की बात कर ली, तो अब आ जाते हैं रिलेशनशिप के ऊपर कि आपकी पर्सनल लाइफ का क्या इम्पैक्ट होता है इन सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज का. एक जो मदर है वो अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करी अपने बेबी के साथ और ये सारे इश्यूज फेस कर रहे होते हैं, जैसे आपने कहा एक्सेप्टेंस होती है, एंटिसिपेट करना चाहिए आपको. तो हाउ डज दिस इम्पैक्ट देयर ओन पर्सनल लाइफ? I think there's a 180 shift, if we might call it that, because there's nothing less than that, right? To think that this is a woman जिसने most likely was statistically ये एक active choice नहीं होती. This is just something that is accepted of the woman to, you know, उसको एक validation भी इससे associated है. तो ये changes plus उनकी कोई classes भी नहीं हो रही. So बच्चे की तरबियत is a major task, right? So a lot of times एक औरत ऑलरेडी काफी सोशल प्रेशर से गुजर रही होती है, which has an impact on their personal life. बर्थ से लेकर जो नेक्स्ट 6 वीक्स हैं, जिसको हमारे यहाँ पर अमूमन 40 डेज को छिला का एक टर्म है जो कि रेफर किया जाता है फॉर साइंटिफिक रीजंस. ऑफ कोर्स वो हम उसमें कुछ और टर्म्स यूज करेंगे, बट दिस इज समथिंग जो कि एक्सेप्टेबल, एक कॉमन यूजुअली ट्रेडिशन है कि 40 डेज में आप उसको रेस्ट भी दे रहे होते हैं, आप सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं. बट उसके अंदर उसके पास सोशल सपोर्ट कैसी है, वो है या नहीं है, उसको इंश्योर करना इज अ होल डिफरेंट डील, राइट? ड्यूरिंग दिस टाइम उसकी पर्सनल लाइफ पर एक बायोलॉजिकल लेवल पर बहुत मेजर इम्पैक्ट आया होता है. अगर हम थोड़ी सी इसकी बायोलॉजी, आई नो दिस माइट साउंड लाइक अ टेंजेंट बट इट्स वर्दी ऑफ मेंशनिंग, कि उसके इंटरनल जो केमिकल और हार्मोनल लेवल्स हैं वो बहुत स्टीप चेंजेस से गुजरते हैं राइट व्हेन द पर्सन गिव्स अ बर्थ. उसके विदिन दीज वीक्स आपके एस्ट्रोजन लेवल्स, प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स, ऑक्सीटोसिन, ये मेजर
जो आपके ग्लैंड्स है ना इंटरनली, वो उन पे एक मेजर इम्पैक्ट है, राइट? सो अभी आपकी जब इंटरनल रियलिटी इतनी इंटरेस्टिंगली चैलेंज्ड हो, ऑफ कोर्स पर्सन की अपनी लाइफ पे ऑलरेडी वो इम्पैक्ट आ जाता है। उसके बाद अगर हम देखें तो सोशल प्रेशर्स जो कि वहां पर होते हैं, यूजुअली द फिगर शी इज लुकिंग अप टू, वो कितना अवेयर है? बिकॉज अगेन वी जस्ट एस्टैब्लिश के एक लैक ऑफ एक एजुकेशन, या अपनी तरफ से कुछ लोग आजकल मैंने देखा है, कई लोग अपने आप को एजुकेट करने की कोशिश करते हैं। I don't know, I think you're breaking up a little. Is this my internet or yours? It's completely fine at my side. अच्छा, चल ठीक है, let's hope for the best. I can still hear and see you. Yes. So, so the fact remains के सोशल प्रेशर है बर्थ के टाइम पर ही, बेबी के जेंडर से लेकर, उसकी हेल्थ से लेकर, उसकी हेड शेप से लेकर, हर चीज के लिए एक जजमेंट का एक एलिमेंट है वहां पर, जो पोटेंशियली, आई एम नॉट सेइंग हर केस स्टक हो गया। नहीं, it's fine. I guess there's इट्स some फाइन। sort of अच्छा, issue, मेरे लेकिन पास अब सही स्टक है। हो, हाँ, it's fine. हाँ, अच्छा, ठीक है। सो वहां पर ये सब सोशल प्रेशर्स की वजह से एक थोड़ा सा एक एहसास अक्सर खवातीन रिपोर्ट करती हैं कि वो जो एक चीज है ना कि एम आई डूइंग दिस राइट, एम आई नॉट डूइंग दिस राइट, that is a question Right. that consumes a lot of mothers, and usually वो therapist के office में आके वो थोड़ा सा clarify होता है, because very sadly so, I've heard and I've experienced this within a few circles as well, कि जो OBGYN है वो भी उनको प्रॉपर गाइडेंस या वो चीजें वहां पर, क्योंकि टाइम नहीं है ना, वो कैसे सपोर्ट ठीक प्रोवाइड हो। करें? मल्टीपल प्रोफेशनल्स, वो सिर्फ गायनोकोलॉजिस्ट सबका रोल तो नहीं प्रोवाइड कर सकता या कर सकती, तो Exactly. वहां पे सो वहां पे एक अकेलेपन का वहां पे एक इशू है मेजर। ठीक We हो गया। have to learn to give that support to our mothers, that they are good enough, it's fine, they'll learn, they will have to learn, and child rearing में कोई एक फॉर्मूला नहीं है। हर बच्चा मुख्तलिफ है, उसके टेम्परामेंट को एक्सप्लोर करना पड़ता है, एंड यू थिंक देयर इज अ परफेक्ट वे ऑफ रेजिंग अ चाइल्ड, दैट इज नॉट ट्रू। यस, दे नीड योर टाइम दो, तो ये चीज है। एंड देन फिर आई थिंक एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट आ जाता है वो स्पाउसल रिलेशनशिप का है। फीमेल्स के लिए बहुत नेचुरल है कि वो जो एक आपका एक होता है द एबिलिटी टू बॉन्ड विद द हस्बैंड, वो चेंज हो जाती है। आई वुड नॉट से कि वो सेम है, वो खत्म हो जाती है बिकॉज सेक्स ड्राइव लो हो जाती है, बट उसके अलावा वो बॉन्ड चेंज भी हो जाता है, बिकॉज मोस्ट लाइकली फादर की अटेंशन, अब वो पर्सन भी फादर है, वो सिर्फ स्पाउस नहीं है, राइट? तो उस टाइम पे कई लोग डिफरेंट चीजें एक्सपीरियंस कर सकते हैं, एंड देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ पेरेंट ऑफ पैटर्नल डिप्रेशन एज वेल, पैटर्नल पोस्टपार्टम डिप्रेशन। तो सही। ये सब एस्पेक्ट्स मिलकर फिर वो जो स्पाउसल रिलेशनशिप है, ऑफ कोर्स उस पर इफेक्ट आता है। वन हैज टू बी वेरी पेशेंट ड्यूरिंग दोज टाइम्स, वन हैज टू अंडरस्टैंड कि अब एक फैमिली का यूनिट फॉर्म हो रहा है, इट्स ओके इफ थिंग्स आर नॉट लाइक दे वर बिफोर। तो yeah, I think these would be the most prominent ones. ठीक हो गया। तो हमने फैमिली पर्सनल लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट देखा, तो रिलेशनशिप जो एक चाइल्ड के साथ होता है, जैसे आपने कहा कि नोबडी इज परफेक्ट और हर बंदा लर्न कर रहा होता है, लर्निंग प्रोसेस होता है ये, एंड एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट, अटेंशन चाहिए होती है। लेकिन कुछ लोगों में हमने देखा कि उनके मेंटल हेल्थ इश्यूज के साथ, वो अपनी स्ट्रगल्स के साथ इतना कोप करने की कोशिश कर रहे थे कि उनकी अटेंशन अपने बच्चों से हट जाती है। So how does this whole process affect a relation between a mother and a child? It really depends on the birth order of the child as well, कि वो बच्चा है कौन सा। जो पहला बच्चा होता है उसके टाइम पे चीजें फर्क होती हैं, सेकंड पे दे आर डिफरेंट, बट कई दफा वहां पर बड़े स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स आ सकते हैं। कुछ की हमने पहले बात की है, देयर इज आल्सो मैटरनल गिल्ट की का एक वो, बिकॉज आपके स्लीप पैटर्न्स अभी एडजस्टेड नहीं है, आपकी बॉडी अभी एडजस्टेड नहीं है, तो वहां पर आई थिंक अपने आप को मुसलसल एक
मौका देना, दैट यू नो इट्स ओके. देयर आर सो मेनी केसेस जहाँ पे माँ ये रिपोर्ट करती हैं कि बच्चे, मैं सो रही थी, मैंने बच्चे को तकिया समझ के नीचे फेंक दिया, या मैंने जो है वो इस तरीके से जो है ना बच्चे को, मतलब अगेन ये फर्स्ट चाइल्ड है, माँ को सीख के वो नहीं आई थी, which gives us this सही बात. idea कि it's so important to educate the mother while she's in the process of becoming a mother. Mashallah, it's a wonderful change that I see in the society today, at least in some circles, जहाँ पे educated females हैं, वहाँ पे वो कोशिश कर रही हैं कि वो अपने आप को बच्चे के आने से पहले थोड़ा prepare करें, समझें कि बच्चा फंक्शन कैसे करता है. Because see, even if you try dealing with a kitten, या छोटा कोई ऐसा जो इंसान नहीं है, right? Even that takes a lot of effort. But when we are talking about the human child, it is one of the most complex machines you'll ever come across, right? ठीक है, वो थोड़ा helpless होता है, लेकिन वो या होती है, लेकिन वो नॉन इंटेलिजेंट नहीं है, उसकी एक पूरी दुनिया है, उसका एक पूरा मैकेनिज्म है. सो उसको फिगर आउट करने में अगर सिर्फ आप अपनी सेंसेस पे रिलाय करेंगे तो आप शॉर्टकमिंग्स आ जाएंगी. उसके हर चीज में आपको एक एफर्ट पुट इन करनी है. इसीलिए जरूरी भी है कि माँ अपनी सेहत का ख्याल रखे, बिकॉज वो कंपैशन जो उसके अपने अंदर अपने लिए है वो ही फ्लो करता है अल्टीमेटली जो बच्चे के ऊपर. सो या दैट इज देयर इन अ फ्यू केसेस, जैसे हम पहले थोड़ा सा मेंशन कर रहे थे, जरूरी नहीं है कि हर माँ उस बच्चे को एक ही तरह से रिसीव करे. माएँ अगेन ड्यू टू अ फ्यू बायोलॉजिकल इश्यूज या कुछ और भी चीजें हो सकती हैं, if let's suppose a mother does not feel that kind of an affection towards the child, it's important that there are a few other people present as well, जो कि थोड़े से ऑब्जर्वेशन, अगेन एडवाइसिव मोड में ना हो, लेकिन थोड़ा सा प्रेजेंट रहें, सो दैट इफ अ मदर एक्सपीरियंसेस सच थिंग्स वो वॉइस आउट कर सके. ऐसा हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि दैट चाइल्ड इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द एंड ऑफ द डे. दे आर अडोरेबल, बट they demand a lot of attention. तो वहां पर एक स्पेस ओपन रखना जरूरी है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी. दैट कंडीशन इज ट्रीटेबल, उसके बारे में बात की जा सकती है, लेकिन अमूमन जिस चीज का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है ना बच्चों पे एट दिस स्टेज, वो है निग्लेक्ट का. Let's suppose for any reason this mother is not able to attend, because माएँ सब टाइम हर दफा अपनी मर्जी से नहीं ये कर रही होती हैं. समटाइम्स उनकी और ड्यूटीज बहुत चैलेंजिंग होती हैं. इन द मॉडर्न टाइम्स अ फीमेल समटाइम्स उन पे इतना बर्डन हो सकता है, जैसे यू नो अब कई लोगों के पास वैसे माशाल्लाह अब हो जाती है वो जो लीव होती है एक आपकी मिटर्निटी लीव जो होती है, लेकिन समटाइम्स आपकी फैमिली आपसे एक्सपेक्ट करती है दैट यू हैव अ चाइल्ड बट यू नीड टू बी एबल टू टेक केयर ऑफ योर हाउस और समथिंग लाइक दैट. बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो ये बच्चा है ना, इसके लिए माँ की इग्नोरेंस या निग्लेक्ट या प्रॉपर उसको अटेंशन जो उसको चाहिए वो ना मिल पाना काउंट्स एज अबैंडनमेंट. For a child, how this is what studies prove, and I think बड़े initial years में आप इनके बारे में पढ़ भी लेते हैं psychology में. हार्लो की बड़ी important study है. You know, when a mother holds a child, the way she holds the child, the child understands that okay, is this world a safe place or is it not? It's that tricky, right? तो माँ की presence is important, माँ का जो comfort है वो important है. So अभी हम सिर्फ फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, so I think yeah that is where I would rest the case. So let's come towards coping mechanism. हमने mental health issues की बात कर ली, symptoms की बात कर ली, relationships की बात कर ली, impact किस तरह पड़ता है, effect किस तरह होता है. तो अब coping mechanism के ऊपर आ जाते हैं. आपने accept कर लिया there is this issue and you have it. So what do you do next? मतलब how can a mother cope with these issues जबकि they have to take care of their families, they have to take care of children as well, और फिर society भी हमें पता है society सबको किस तरह से label करती है. तो where do they go for help? A lot of times again ये एजुकेशन से ही बात स्टार्ट होगी, बिकॉज सबसे पहली बात समझने की कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ये आपकी गलती नहीं है. Of course it is not a blessing, it's a test, but ये आपकी गलती नहीं है. So जैसे ही आप समझते ना कि okay, it's a symptom, it is a symptom of sickness, it is not something I did wrong, वो मेरे साथ ऐसा हो रहा है.
तो आप फिर थोड़ा सा हेल्प सीख करने की हिम्मत आपके अंदर आ जाती है, राइट? सो टू बी एबल टू फॉर्म दैट सपोर्ट सिस्टम, वो सपोर्ट सिस्टम में कौन होगा, इट रियली इज सब्जेक्टिव, लेकिन हैविंग पीपल दैट यू कैन टॉक टू इज वेरी इंपॉर्टेंट। वहां से स्टार्ट होता है, बट आई थिंक अल्टीमेटली पोस्टपार्टम डिप्रेशन या ये जो इस तरीके की चीजें होती हैं, इसके अंदर देयर आर वेरियस प्रोफेशनल्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं ग्लोबली। जो अगेन मॉडर्न सोसाइटीज के अंदर देयर आर सेवरल प्रोफेशनल्स जो कि हर स्टेप पे आपको फैसिलिटेट करने के लिए होते हैं। आपके गायनोकोलॉजिस्ट की रिलायंस है, लेकिन इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल आपके थेरेपिस्ट का होता है, मिडवाइफ का होता है, साइकोलॉजिस्ट का होता है। सो टू बी एबल टू सीक दैट हेल्प इन पाकिस्तान, आई वुड से कि हेल्प के जो फोरम्स हैं वहाँ पे यू could go to a psychologist, you could talk to your psychiatrist। जिस भी हॉस्पिटल में आप गए वहाँ पे यूजुअली मौजूद होते हैं। कई केसेस में पोस्टमार्टम में यू डू नीड मेडिकल सपोर्ट because a lot of it is biological, and then you can come towards psychotherapy as well, which is usually very brief but it's extremely helpful. So that कोपिंग में आई थिंक कोपिंग के लिए अगर हम रिलाय करना स्टार्ट करें पोस्ट उस टाइम पे, तो इट्स नॉट अ वेरी गुड आइडिया। वन हैज टू मॉनिटर दीज सिम्टम्स while they are pregnant or before they are thinking of getting pregnant. I know this can be taken in any direction, but this is something you have to think about. This has to be an active decision. In any case, if you are expecting, then these are the things you might want to look out for. कि coping वहीं से start हो जाती है, that you start to learn to be present for yourself. It is very important. And then educating yourself, understanding कि आपकी appetite बहुत ज़रूरी है इस सारे process में. Even if you don't feel like eating, make sure that you eat. It does not have to be a very enjoyable process. Making sure that you take vitamins, making sure you take supplementary ये जो इतने elements होते हैं like vitamins and zinc and magnesium, ये different चीजें, because again nutritional जो आपकी source है वो comparatively compromise हो जाता है, and जो आगे जाके बच्चे को भी जानी है nutrition, आपको भी जानी है, तो वो एक चीज है। इसके अलावा I think communication, the best gift a woman can gift to herself in such a situation is to communicate with the people she can trust. By the way, it's not like आप हर एक से बात नहीं कर सकते, ना आपको करनी चाहिए, but working on these sources, it's extremely important that you work on them, and usually try and staying in contact with a professional, having a go-to person, it can really help, because ये ground आप set करते हैं और उसके बाद you start playing on the field, right? So yeah, I think mostly जो है मुझे सही हो गया। अब हम थोड़ा सा सोसाइटी को डिस्कस कर लेते हैं। सोसाइटी का इस सब में क्या रोल होता है? बिकॉज आई पर्सनली सीन पीपल टेलिंग न्यू मदर्स के यू हैव गेन्ड वेट, योर स्किन डजंट लुक दैट फ्रेश एनीमोर, यू हैव स्टार्टेड लूजिंग हेयर। मतलब ऑल ऑफ दिस इज अ वेरी नेचुरल प्रोसेस, लेकिन सोसाइटी उसको ना उस तरह से एक्सेप्ट नहीं करती। तो डिप्रेशन के अंदर या मेंटल हेल्थ इश्यूज के अंदर आई पर्सनली बिलीव कि सोसाइटी का भी बहुत बड़ा रोल होता है। So how can we as a society help women, yeah, help mothers cope, tackle these mental health issues of theirs? I don't wish to sound very controversial, but I might, and I'm giving this as a disclaimer because I feel we have a lot to learn. We have a long way to go as a society when it comes to motherhood. Exactly. I think प्रॉब्लम मैंने शुरू में जैसे कहा था, स्टार्ट भी सोसाइटी से ही हो रहा है, जब हमने एक वुमन की वर्थ को अटैच कर दिया मदरहुड के साथ। Motherhood is something that a woman has to opt for. She wants to do it or she doesn't want to do it when she wants to do it. वो एक डिसीजन चूंकि उसकी बॉडी है, उसका ख्याल रखना उसकी जिम्मेदारी है, राइट? सो दैट इज वन थिंग। लेकिन उसके बाद थ्रू आउट दिस प्रोसेस आई फील कि जितनी ज़्यादा रिलायंस हमारी प्रेगनेंसीज और मदरहुड में मिटर्नल फिगर्स पे रहेगी जो कि प्रोफेशनली ट्रेन नहीं है, दे आर वेरी वेल मीनिंग, they can be very well meaning, they might not be well meaning, we cannot generalize, but वो maternal figure जरूर है, लेकिन वो trained नहीं है, right? वो उतना educated उस मामले में नहीं है, वो experience से बात कर रही है, उनका experience is invaluable,
but it might not be very pertinent, might not be very relevant to the woman's situation. तो हमारी reliance वहाँ पर हमें थोड़ी सी चेक करने की जरूरत है एज अ सोसाइटी. अपनी बहुओं को, अपनी बेटियों को इनकरेज करें कि go seek help, talk to someone who's professionally qualified. इससे पैसे ज़ाया नहीं होते, ये बहुत important investment है आपकी आने वाली नस्लों के लिए. So just think about it. इसके अलावा जो है आई फील कि एज अ सोसाइटी maternity leave का concept it's something amazing. I do expect to see कि in a few years at least हमारे यहाँ पे भी multinationals वगैरह paternity leaves वगैरह ऑफर करें, because a woman needs support. बच्चा दोनों का है ना, माँ का भी है, बाप का भी है, ऑल्दो वो आया माँ से, बट दोनों का है. तो वो एक सपोर्ट के लिए paternity leave is very helpful. I think overall ये जो एडवाइस देने वाला कल्चर है, it has helped a lot of people, but now it is more it is a bit more destructive than it's useful. तो वहाँ पर कई बातें हैं जो जिनका साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, they're actually considered to be very harmful these days. लेकिन उनको कहना, माँ से एक्सपेक्ट करना कि उसको ये सब पता हो. फॉर एग्जाम्पल बड़ी कॉमन एग्जाम्पल है बच्चे का सर बनाना, राइट? कितने बच्चे हैं जिनकी मेजर ये डैमेज हो जाता है बिकॉज माँ ने पट्टी वो गलत तरीके से बांध दी. एंड देन हमारे यहाँ पर एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो कंसिंग्वानिटी का है कजन मैरिजेस में, तो वहां पर वो फैमिली प्रेशर जो है ना वो डबल ट्रिपल हो जाता है. उसके और भी बायोलॉजिकल बहुत सारे उसके कंसर्न्स हैं, लेकिन फैमिली थ्रू आउट एक जजमेंटल ग्रुप बन जाता है. इट्स नॉट द सपोर्ट ग्रुप दैट इट इज रिक्वायर्ड टू बी, राइट? तो ये है. फिर आई थिंक अबव ऑल वी नीड टू एम्पावर आवर वुमन. We have to make her see that motherhood is a major challenge. We cannot expect कि ये खुद ब खुद ही आ जाएगा. इसकी वजह से माओं की इज्जत हमारे दिल में जब बढ़ती है. एक्चुअली मरियम, you know what, I was thinking that I would say this out loud once at least, कि you know माँ एक इंसान है, and we have to remember कि ये सारी चीजें अगर हम इनको ऑटो पायलट पे छोड़ देंगे ना, तो फिर यही होगा. माँ भी बेचारी परेशान, बच्चा भी आगे से कंफ्यूज, बस ये फैमिली बन गई एंड वी आर वेरी हैप्पी. जब तक हम इसको ह्यूमनाइज नहीं करते ना, तब तक हम इसकी ग्लोरी की वजह से हम इसको हाथ नहीं लगाएंगे, हम इसको समझेंगे नहीं कि उसकी माँ बनने में क्या एफर्ट्स जा रही हैं, उसकी माँ बनने में उसकी डिमांड्स क्या है. अभी वी हैवंट इवन टच्ड ऑन द टॉपिक कि जो एक वर्किंग मदर है, 3 महीने आर नॉट इनफ फॉर अ वुमन टू रेज अ चाइल्ड, बट मैटरनिटी लीव जब मिलती है तो वो कई खवातीन इस वजह से अपना करियर छोड़ने पे मजबूर हो जाती हैं, बिकॉज प्रॉपर डे केयर सेंटर्स नहीं है, जो सपोर्ट चाहिए वो माशरे में नहीं है, जजमेंट बहुत ज्यादा है, राइट? तो Exactly. a good starting point would be to think about these questions. I've raised quite a few of them. Let's start from here. And yeah, and then try to be as kind to mothers as possible, reminding them that they are doing a great job. They can always learn. All of us can learn, but they're not bad mothers. So most of the cases. So for the viewers, if you have any kind of questions regarding mental health or motherhood, please drop them below and we'll be answering them. Uske alawa, Sabaenah, I guess we have covered a lot of things. Uske alawa, if you want to add anything, is sab ke baad. I would like to appreciate TheListener.pk because when you reached out to me, it was a very pleasant surprise to see the topic. Actually, I was a bit concerned because जब हम live जाते हैं, audience होती है, we don't know exactly who the listener is. अब ये topics ऐसे हैं जो female health, motherhood तो फिर बाद की बात है, female health से जितने related questions हैं, इनको काफी ज़्यादा touch करने से लोग डरते हैं. So I would really like to appreciate your initiative, and I would say कि ऐसी शुरुआत होती है. And thank you for asking all the relevant questions. Yeah.
Thank you for coming. Thank you for joining. Thank you for giving us so much of your time. And I guess we don't have any questions. इतने अच्छे से सब कुछ explain हो गया. People are not left with any sort of question. I hope so. तो आगे भी इंशाल्लाह इसी तरह से we can play our part in the society. इसी तरह से awareness spread करने में, issues को raise करने से इसी तरह से लोगों को पता चलेगा. So I really hope people actually learned a thing or two from this session, and it was a very good session. Thank you so much for joining us, Sabaenah. And we had a really good time. Or inshallah, next week we'll be back with another interesting topic. So please stay tuned with that too. So thank you very much. Thank you, Mariam, for Yes, being we'll end the session. Thank you, Mariam, for being a wonderful host, and hope to see you around. Thank you Take care. for coming. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz.